بات نہیں کرنے. اچھا یہ میں بات مختصر کرتا ہوں سیریس. ہمیں کام کرنا چاہیے شہر کی بہتری کے لیے. کمیٹیوں کو سلیکٹ کیا تھا, اس پروسیس کو آگے لے کر بڑھے اور اس میں ہم اس وقت بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. وہ پروگرام ورلڈ بینک کا ان 12 میونسپل کمیٹیز کی حد تک افیکٹو ہو چکا ہے اور انہوں نے اس منتھ میں جو ایک پچھلے دنوں میٹنگ کی جس میں ہمارے وائس چیئرمین صاحب بھی گئے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو 20% شیئر ہے اس کو آپ مختص کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ان کا جو ٹوٹل پلان ہے وہ اس میونسپل کمیٹی کو اگر یہ قائم رہ جاتی ہے تو یقینی طور پر 1 ارب روپے کی خطیر رقم دیں گے جو کہ مینٹیننس اور ریپیئر کی مد میں اس بورے والا شہر میں لگائی جائے گی. اس کے بعد ملک فاروق صاحب نے کی ہے اس چمڑا منڈی کی نیلامی کے حوالہ سے اور اس فاٹک پہ جگہ کی نیلامی کے حوالہ سے. تو اس دور میں ہم نے کوشش کی ہے قبضہ مافیا سے. انہوں نے یہاں کام کروانے جو نہیں کروانے, جو فنڈ بھی ہمیں ملتا رہا ہے MNA MPs کے علاوہ وہ چیئرمین بلدیہ ہم کونسلر کو پوچھ کر دیتے رہے. جناب والا نہیں آ سکے ووٹوں سے, اس لیے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ محلوں میں لوگ ہم سے کیا مانگتے تھے. کوئی ہم سے سولنگ مانگ رہا ہوتا تھا, کوئی ٹف ٹائل مانگ رہا ہوتا تھا. چیئرمین بلدیہ کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہوتے تھے بھائی کہ وہ یہاں پل بنوا دیتے. اور دوسری بات جو کرپشن کی بات کی ہے, پہلی بات تو میں آپ کو کہوں جو آپ نے افتخار بھٹی صاحب کو کہا ہے کہ آپ نے 10 یا 15 فکرے بولے, بھائی مصطفیٰ بھٹی صاحب 5 سال اس ہاؤس میں رہے, سوائے ایٹم کے انہوں نے کوئی لفظ بولا ہی نہیں. ہم نے 5 سال دیکھا ہے ان کو, 2 لفظ سے زیادہ وہ بولے ہی نہیں. اور شاید آپ نے اس دور پر غور نہیں کیا. کرپشن زدہ دور جو کہ پنجاب میں سب سے زیادہ کرپٹ بلدیہ گنی گئی ان 5 سالوں میں. اللہ کے حکم سے آج ڈسٹرکٹ میں ملتان میں کمیشنر آفس میں بیٹھا تھا, ادھر ایڈیشنل کمشنر نے ایک بات کہی, اس نے کہا باہر بلدیہ پورے والا ہے یا MLC پنجاب میں جدھر کرپشن نہیں ہو رہی. لوگ اتنی دور تک ہماری یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہاں کرپشن نہیں ہو رہی. صفائی کے حوالے سے بار بار آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو 1987 میں سیلری ورکر ہمارے پاس تھے وہی ہیں. گورنمنٹ نے آج تک اجازت نہیں دی ایک سیلری ورکر بھی رکھنے. مسئلے مسائل کی آمدن بڑھائی گئی, جو کچھ ہو سکا ہے اس کبینہ سے یہاں کیا ہے ہم نے, بجائے اس بات کو اپریشیٹ کرنے کے. جیسے کہتے ہیں لاسٹ اجلاس ہے, آپ نے اس بات میں بھی کام شروع کر دیا. بڑے تماشے کیے ہیں آپ نے ادھر 7-1.5 سال میں, کہیں کوئی کرپشن ثابت تو کرے. اڈے کی بات کرتے ہیں 1 سال ٹھیکہ رہا ہے, آپ 2 سال کی بات کر رہے ہیں. 1 سال ٹھیکہ رہا ہے نا, 1 سال کے بعد آپ بلدیہ کی آمدن دیکھ لیں, پھر اب بھی کرپشن ہو رہی ہے, بلدیہ کا ملازم کر رہے ہیں. اس طرح بھائی بات نہیں چلتی. آپ کو اپریشیٹ اپنی کمیٹی کو کرنا چاہیے. آج آپ اٹھ کے آپ عوام کی ووٹوں سے نہیں آئے, معذرت کے ساتھ آئے ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ وہاں کیا چاہیے. واٹر فلٹریشن پلانٹ پہلے دن سے, جس دن سے یہ چیئرمین صاحب نے چارج سنبھالا ہے, اس دن کے باقاعدہ جو فلٹریشن پلانٹ ان کے فلٹر 1 ماہ بعد چینج ہو رہے ہیں. جس دن پہلے دن ہم نے فلٹر نکالے ہیں نا, وہ 1 سال سے وہ فلٹر چینج نہیں ہوئے. صفائی کے وعدہ سے جتنے سینٹری ورکر ہیں ان سے کام ہو رہا ہے, جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں. ہم بھی سارا دن لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, لوگ ہمیں کہتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, کبھی اس کو کہیں, کبھی کسی کی منت کر, کبھی کسی سینٹری ورکر بھائی کیا, کبھی کسی کے دادی کو ہاتھ لگا, ایسے کام کرتے ہیں. صرف یہ عملے کی کمی کی وجہ سے. مہربانی. جب سے اس ہاؤس کا
अजलास देखा है, यही सुनते आए हैं कि आखिरी इजलास है, आखिरी इजलास है। नहीं, हमारी सोच और समझ के मुताबिक आखिरी इजलास नहीं है। ये जैसे हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, मेरा ख्याल है, मेरा व्यू है कि ये 5 साल पूरे करें, क्योंकि माहौल कुछ टफ था। मैंने 2-3 इजलास पहले देखा था, तो मुझे याद नहीं था कि बल्दिया का इजलास है। तो इमरान गफूर भट्टी साहब मेरे भतीजे बड़े जज्बाती हो जाते हैं। इमरान गफूर साहब बड़े जज्बाती हो जाते हैं। वो क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, तो ये अफसरों को डिफेंड करते हैं, चेयरमैन साहब नहीं करते, इमरान गफूर पता नहीं क्यों करते हैं, ये जज्बाती हो जाते हैं। और एक बात मैं अर्ज करूं, बड़ी गुड लक है चेयरमैन की कि अपोजिशन नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और ना ही हम खुद अपोजिशन का किरदार शहर की बेहतरी के लिए अदा करते हैं। इस शहर में मैं कहूँ कि पिछले दौर में काम नहीं हुआ, वो कहेंगे हमने बहुत काम करवाया, ये कहेंगे इन्होंने काम नहीं करवाया, उन्होंने बहुत काम करवाया। मैंने यहाँ पे तूत साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब तशरीफ लाते हैं, इसी साहब भी आते हैं, शहर को ग्रीन सब्ज शादाब करने के लिए बेशुमार दफा रात को भी सुबह को भी तशरीफ लाते हैं। मैंने तूत साहब से रिक्वेस्ट की, जवेद बैठे हुए असगर सामीन से भी एक निशानदेही की, ये मुझे कहते रहे आप खुद आए वहाँ पे। मैंने कहा यार वो प्राइवेट मीटिंग होती है, वहाँ जिसके मेहमान होते हैं गैर अखलाकी, वहाँ पे नहीं मैं रहना। जब पब्लिक मीटिंग होगी, कोई खुली निशानी होगी, फिर मैं आऊँगा। चेयरमैन साहब को चाहिए ये सुबह सुबह कभी अपने नरम और खूबसूरत बिस्तर से बाहर निकलकर शहर को देखें। एक तो इनको मुबारकबाद लोगों ने फोन पे दी, मैं हाउस पे देता हूँ, मुबारक हो, अल्लाह ताला इनकी और इनके बेटी की उम्र दराज हो। और फिर वो जब सुबह ये उठकर शहर का राउंड लगाएंगे, तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इनके इल्म में ना होगी तो नजर आ जाएगी, और वो नजर आने से शहर में बेहतरी नजर आएगी। मैंने तुम साहब से कहा था कि नहर की तरफ जब जाए, कब्रिस्तान के साथ साथ सुबह लोग बात के लिए जाते हैं, तो वो नहर के किनारों पे मिट्टी पड़ी हुई है, जब मोटरसाइकिल या गाड़ी सुबह ही गुजरती है तो उसकी धूल जो है वो आवाम पे पड़ती है। वो आज तक स्टिल ऐसी ही पड़ी हुई है। वो चेयरमैन साहब अगर महकमा नहर में एसडीओ से कहे कि ये आपकी जिम्मेदारी है, भर सफाई में अपने करवाई थी, बजट भी पास करवाया, बिल भी ले लिया, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। चेयरमैन साहब एक और चीज है, आप गुजरेंगे 1122 से जौडो के घर से आगे से गुजर जाए तो इतने साइन बोर्ड लगे हुए हैं दोनों तरफ कि वो ट्रैफिक में हर्डल पैदा करते हैं। अगर आप मेहरबानी करें, वो मंजूर शुदा भी नहीं है, नहर के दोनों एज पे लग के उन्होंने नहर का पूरा रास्ता रोका होता है, उनको अगर आप उठवा दें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर। हमारे दोस्तों के व्यू सख्त थोड़े से हो जाते हैं। जवेद भट्टी साहब ने दुरुस्त कहा, चेयरमैन साहब ने तमाम लोगों को किसी न किसी रंग में अबलाई किया है, जवेद भट्टी साहब को नहीं किया। गुलमत साहब, मैंने तो चेयरमैन साहब मेरे नेबर भाई हैं, मैंने तो आज तक फोन नहीं किया, शायद आपको गलत फहमी है, लेकिन अगर जवेद भट्टी साहब को ये गलत फहमी है कि मौजूदा एमएनए एमपी की सपोर्ट नहीं है तो गलत है। मौजूदा साहब का एमपी एमएनए की फुल सपोर्ट इनके साथ है, ये आपको किसी ने गलत कहा है। शहर का काम होना चाहिए था, डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो सकती। वो अल्लाह जाने क्या चक्कर है, क्यों नहीं हो रहा। मेरे हल्के का मैंने तो कभी जिक्र ही नहीं किया, डेवलपमेंट को मैंने कभी टच नहीं किया, इसलिए कि ये लोगों के जितने काम चेयरमैन को करने चाहिए थे
बेशक अपोजिशन वाले को बुराई करें, बेशक इक़्तिदार वाले को करें, इनका यहाँ तक करप्शन है, इस पाकिस्तान में करप्शन नहीं रोक रही। आप और सब लोग शोर डालते हैं तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, बल्कि में तब्दीली क्या आ रही है? आप निशानदेही करेंगे, मेरे जैसे भाई आपको डिफेंड करेंगे, मुलाजमों को डिफेंड करेंगे, बजाय आपकी सपोर्ट करने के उनको। चेयरमैन साहब ने एक नौजवान मियां खालिद साहब को चेयरमैन बनाया था, वो अभी बैठे हुए थे, पता नहीं कैसे निकल गया है। तो हम समझे थे नौजवान आदमी है, मियां खालिद साहब यहाँ पे हमारे छोटे भाई, उनको आपने नौजवान वो खुद नौजवान मुंह तो मियां खालिद साहब नौजवान आदमी थे, आपने उनको चेयरमैन बनाया, बूढ़े हो गए, आप नहीं मान रहे, पहले थे। मेरे ख्याल में वो भी सियासत की नजर हो गया, उन्होंने भी दिलचस्पी छोड़ दी है। सियासी प्रेशर आता होगा या किसी और वजह से नाराजगी लेना वो नहीं करते होंगे। तो मैं शहर वालों की नाराजगी क्यों? शहर का काम होना चाहिए। सारी टीम तकरीबन नौजवान है। आपने ये भी दुरुस्त जो ये सामने फरमाया कि अपोजिशन को किसी कमेटी में मेंबर नहीं रखा, आपको रखना चाहिए। चेयरमैन बेशक किसी को ना बनाते, इस्लाह के लिए किसी को न किसी को उस कमेटी में मेंबर बना देते। चलें, ये तो नहीं है कि मलिक रहमत साहब भी सिलेक्टेड है और जुवेद साहब भी सिलेक्टेड है और जुवेद साहब को फंड ना दिया जाए और मलिक रहमत को चिट पर फंड दे दिया जाए, ये नाइंसाफी, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। चेयरमैन साहब मेरी रिक्वेस्ट है, बेशक तुम्हारे जैसे लोगों का फंड काट कर इन लोगों को फंड दे दिए जाए, मुझे उतरा करता हूँ। सारी जुवेद साहब की सारी हकदसी हो जाएगी। तेरी उल्फत के तकाजे भी अजब अंदाज के थे, तेरी उल्फत के तकाजे भी अजब अंदाज के थे। अकरार अलग, तकरार अलग, तज़ीम अलग, फरमान अलग। साथ दिया, हमारी आवाज उन्होंने पहुंचाई और हर मामले में हमारा साथ दिया। मैं अपने जो यहाँ के मुलाज़मीन बल्दिया के उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की है। अगर हमने उनको कोई काम कहा तो उन्होंने बड़े इज्जत के साथ हमारे साथ पेश आए। और इस अल्लाह करे कि कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर ये इजलास ज्यादा आने शुरू हो गए तो चले बातें चेंज कर लेंगे, लेकिन यू टर्न ले लेंगे। आपका एक मुमताज नुमाया मकाम, डीसी साहब के साथ मीटर को आपको नुमाया जगह पे उठाया जाता था। एजुकेशन के हवाले से, पुलिस के हवाले से, जहां भी अगर कोई बुरे वाला का फंक्शन है तो आपकी एक हैसियत थी, इसलिए कि आप चेयरमैन बुरे वाला थे। मैं आप बता रहा हूँ, पिछली बार कर रहा हूँ। और सॉरी, अच्छा, उसमें लेकर मैं महसूस करता हूँ जितनी बेतुकीरी इस दौर में हुई है इस हाउस की, इससे पहले ना किसी नाज़िम के दौर में ना किसी चेयरमैन के दौर में नहीं। उसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। इस हाउस से पास की गई किसी करारदाद को बुरे वाला का कोई अदारा, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वापदा, एजुकेशन, पटवारी, तहसीलदार कोई अहमियत नहीं देता। हमने एहतजाज भी किए, हुकूमत के होते हुए एहतजाज करके हमने अपने बात को मनवाने की कोशिश की। यानी कि हमारी वो बात नहीं है, आप अंजमन ताजरा देख लें, एक मीटिंग कर ले, वो एहतजाज नहीं, मीटिंग कर ले, पूरी इंतजामिया को पता चल जाता है कि यार उनका मसला हल करें। आप बार कौंसल वकला दोस्त बैठे हुए हैं, सिर्फ मीटिंग बुला लें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिले तक इंतजामिया न हिल जाए तो बात ना हो। हत्ता कि आप छोड़े
इस म्यूनसिपल कमेटी के अंदर सैनिटेशन ब्रांच के मुलाजमीन ही हड़ताल कर लें, मीटिंग कर लें, उसकी भी आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ आए, एक आध बात की और चले गए। आपने 2 साल बड़े बड़े वादे किए, दावे भी किए। आपने इस हाउस के अंदर, जैसा मैं कह रहा था, अकबर परवी के हवाले से आपने अपने दोस्तों को नवाजा। आप जिला की असेंबली देख लें, आप पंजाब असेंबली देख लें, आप सेनेट देख लें, कौमी असेंबली देख लें, जब कमेटियां बनती हैं उसमें ये जमहूरी रिवायत है, हमारी कानून भी है, उसमें अपोजिशन को बराबर का हिस्सा दिया जाता है, उनकी चेयरमैनें भी होती हैं। लेकिन आपने कमेटियां बनाई, सिर्फ अपने दोस्त जो थे उनको आपने नवाजा, उनको कमेटियों के चेयरमैन बनाया। लेकिन चलो, एक और बात जो इस 2 साल 2.5 साल दौर में मैंने देखी, मीडिया के दोस्त भी बैठे हैं, खुद नुमाई बहुत की गई। अगर कहीं से एक ट्राली कूड़े की उठा दी गई, वहां पे बहुत बड़ी तस्वीर लगा दी कि यहां से कूड़ा उठाया गया। अगर फूलों की नुमाइश हुई तो उसमें फूलों से ज्यादा अपनी कातावर तस्वीरें लगाई गई, हत्ता के दस्तावेजी फिल्में बनाकर इस चौक के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर चलाई गई। मैं नहीं समझता कि पूरे वाला में ऐसा कौन सा कारनामा था जो ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ खुद नुमाई की वजह था। आपने एक नारा लगाया था करप्शन के हवाले से, आपने कहा था कि मैं करप्शन नहीं करूंगा, ना करने दूंगा। आपकी इस बात को हमने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन मामला किसी उल्ट हुए। बार बार आपको बावत कराया गया, आपको निशानदेही की गई अपोजिशन की तरफ से कि जनाब आपके जेरे से आया, लारी अड्डा के अंदर करप्शन हो रही है। आपको बताया गया, आपको वीडियो दी गई, आपको दरखास्तें दी गई, आपको रसीदें दी गई, लेकिन आपने उसको 2 साल तक आपने उसको कवर ही नहीं किया, बल्कि आप उसको कवर करते रहे। बजाय उसको खत्म करने के आपने कभी कहा कमेटी बना देते हैं, कभी कुछ खत्म न किया। राव गुहार साहब, इन्होंने आपके हाउस में आपको रिटर्न दिया, आपको बताया कि चेयरमैन साहब करप्शन तो आपके नाक के नीचे हो रही है। इस बल्दिया के अंदर कोई ब्रांच शायद ही ऐसी हो जहां पे पैसे ना लिए जाते हो। ये उन्होंने, बल्कि मुझे याद है मुस्तफा भट्टी साहब ने एक ऑफिसर थे यहाँ पे, उनका नाम लिया तो आप बुरा मान गए थे कि आपने ऐसा क्यों कहा। वक्त ने साबित किया कि वो उसका जो पीछे पार्ट था वो यहाँ भी यही था। आपने नारा लगाया क्लीन एंड ग्रीन पूरे वाला। जनाब चेयरमैन साहब, वो भी हवा में उड़ गया। क्लीन और ग्रीन, पहले मैं ग्रीन की बात कर लूं, क्लीन की मैं बाद में करता हूं। ग्रीन के हवाले से बुरेवाला के अंदर मैं समझता हूं कि शेख शहजाद नवीन साहब, असगर जवेद साहब बैठे हैं, सिविल सोसाइटी ने बहुत काम किया। उन्होंने मुफ्त पौधे तकसीम किए, उन्होंने लाहौर रोड, मुल्तान रोड, वहां पे पौधे लगाए, ग्रीन बेल्ट बनाई। आपकी, मैं समझता हूँ इसमें आपकी बहुत बड़ी इमदाद हुई थी, लेकिन आपकी तरफ से वो एफर्ट, आपने भी कोशिश की, लेकिन वो एफर्ट जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। क्लीन के हवाले से आपने, सफाई के हवाले से
अगर हमारा हाउस के 10, 15, 20 इजलास हुए हैं तो उसमें अगर 2 घंटे इजलास हुआ तो 2.25 घंटे सफाई पे बात हुई, इस शहर की सफाई के मुताबिक बातें हुई। हत्ता कि यहाँ तक हो गया कि माता रंगे साहब उन्होंने कहा कि आपको मुझे शर्म आती है कि मैं इस मौजूद पर बात करूं। मैं दावे से कहता हूं जितने हाउस के मेंबर मौजूद मेंबर बैठे हुए हैं, हमारे इस हाउस का एक भी मेंबर इस मामले में मुतमईन नहीं है। आप मुल्तान से पूरे वाला के अंदर इंटर हो, बड़े बड़े ढेर आपको नजर आएंगे। और आजकल उसके अंदर एक और अजीब बात है, उसके अंदर आग लगाई गई। आप लाहौर रोड पे चले जाए, मलिक फरूक साहब के साथ जो पानी का जखीरा है, मैं समझता हूँ कि शायद जिला बिहाड़ी का सबसे बड़ा जखीरा वहाँ पे है, जो पानी का मुजाहिद कॉलोनी के अंदर आप देख लें, वहाँ पे जो सफाई का निज़ाम है, लाला आरम मोगल बैठे हुए हैं, इनके हल्के में जाके आप देख लें, 437 में देख लें, एक हल्के का मैं बता सकता हूँ, आपको ही पता है जो वहाँ पे सफाई का इंतजाम हुआ है। आपको बार बार बताया गया कि चेयरमैन साहब, बल्कि मैंने तो बात खत्म कर दी कि आखिर में ये हो गया कि हमारे जितने मेंबर थे यार इसके बात ही नहीं किया करो, कोई और बात भी कर लिया करें। डेवलपमेंट के हवाले से आपने, मैंने जैसे पहले बताया कि आपको पंजाब हुकूमत से भी ग्रांट आती थी और मकामी एमएलए और एमपीए भी आपकी मर्जी और मंशा से पैसे खर्च करते थे। बुरे वाले के अंदर कोई एक भी आप मुझे आदमी बता दें जो छोटा मोटा कारोबार करता हो, चाहे उसका हमाम हो, चाहे उसके वेल्डर की दुकान हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो मार्बल का काम करता हो, छोटा हो बड़ा हो, जिस पे टैक्स मिला है। हमारे हमने 200 से ज्यादा टैक्सेस लगाए, पिछले टैक्स के अलावा 200 से ज्यादा टैक्स लगाए, उसके रेवेन्यू में इकट्ठा होता है। तरक्याती कामों के हवाले से मैं नहीं समझता बुरे वाला में कोई ऐसा काम आप मुझे बता दें जो बुरे वाला की आवाम की फलाह बहबूद के लिए हुआ हो। कोई एक फिल्टर प्लांट आपने लगाया हो इस हफ्ते में तो यहां वाज कर दें। एक सीवरेज की कोई लाइन आपने बिछाई हो, जो बुनियादी जरूरतें की बात कर रहा हूं। वाटर सप्लाई के हवाले से कोई पूरे बुरे वाला के अंदर आपने 10 फुट भी वाटर सप्लाई की लाइन बिछाई हो, कोई पुल, अंडरपास, ये तो बड़ी दूर की बातें हैं। बल्कि सबसे अफसोसनाक बात यह है, पूरे पंजाब में ऐसा नहीं होगा कि हमारे हाउस का इजलास आपके दफ्तर में होता है, जिसके लिए एक प्रॉपर हाल है। आपने हाल नया बनाना तो बड़ी दूर की बात, उसकी मरम्मत करना भी गवारा न की, और इसी में ही 2 साल 2.5 साल से ये इजलास हो रहे हैं। चेयरमैन साहब, आपको शायद मेरी बातें महसूस हो, लेकिन वसीयत अपोजिशन हमने निशानदेही, इन बातों की निशानदेही बार बार की। ये नहीं कि आपके पास कोई, आप कहते रहे मेरे पास वसाइल की कमी है, वसाइल की कमी नहीं थी। अब हमने एक दिन में तस्वीर देख रहा था, आपने रक्षे वगैरह मंगवाए हैं, अभी अच्छी बात है, या जैटर मशीन के मतलब की शरीर है कि आप मंगवा रहे हैं। अगर यही काम आपने पहले किया होता तो शायद आज बुरेवाला का ये हाल ना होती। मैं वक्त गुजर जाता है, आदमी जब चलता है ना, उसका एक कदम आगे होता है, एक पीछे होता है। अगले लम्हे पिछला कदम आगे चला जाता है, अगला पीछे आ जाता है। जनाबे वाली वक्त गुजर गया, लेकिन ये बातें हमारा हक बनता था, इसलिए हमने की है। बड़ी मेहरबानी। तो सिविल सोसाइटी और मीडिया के दोस्त भी यहीं पे मौजूद हैं। तो जब वो काम हो रहा था, मुझे कॉल आई, मैं मौके पे गया। हमने उस ठेकेदार को, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे नहीं था, हमने अनिषेध
करते हैं, बहुत अच्छा काम किया जितना तक वो कर सकते थे। 1.5 साल का अरसा था हमारे पास भाई को फंड मिलते रहे, बुरे वाला के अंदर से भी काम रखा ही था। आपको इतनी प्यारी हाउस क्लास बनते थे, स्पीकर है। दूसरी म्यूनसिपल कमेटी के अंदर बड़े इख्तलाफात है, मेवाड़ी के अंदर है। मेरा ख्याल है बहुत जज्बाती और असेंबली का इलेक्शन अनाउंस हुआ है, उस वक्त से फंडिंग बुला आपको भी पता है। साथ कुछ ऐसी तनकीद बातें की है, ये तनकीद जो जब बंदा काम करता है उस वक्त पता चलता है।